Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my 11th grade students to today's class, and it's an important class, and it contains a lot of content that you require in order to understand Unit 4. And Unit 4 is entrepreneurship as innovation and problem solving. Dear students, today I'm going to take up class number 4 from the same unit, and today's class title is Role of Technology and Social Media in Creating New Forms of Business. You must be observing this nowadays that technology and social media collaboratively playing a very significant role in supporting the businesses across the globe. So how they are doing it in today's class, we are going to study about them. So let's begin today's class. These are the points under discussion in today's class. The first point is role of technology and social media in creating new forms of business. Second point is emerging market opportunities in smart technology. Third point is information collection and analytics. Fourth point is business intelligence for strategic decision making. Fifth point is smart mobility and connectivity. Sixth point is cloud computing's impact on business models. Seventh point is the influence of social media on business communication. And last but not the least, future trends and business evolution. So, बच्चों, in these 8 points, I'm going to sum up today's class. So let's begin with the first point at hand. Role of technology in creating new forms of business. Let's take up the first point. In the last 25 years, computers and the internet have changed how we do things and talk to each other. You must be observing this, that nowadays we cannot even think about a home or a person across the country who doesn't know how to use internet. चलिए हम कंप्यूटर्स के बारे में तो कह सकते हैं कि अभी भी काफी लोगों को नहीं आता होगा, but majority of people they know how to use smartphone, and majority of them they know how to use internet. So internet is a big revolution, is a big learning, has big advantage, and is a big source of knowledge as well, bringing lots of new ideas and ways to do the things. The main purpose of internet is to provide you information and to make your life easy, and it keeps supporting you in all the forms it can. M-commerce, e-commerce, entertainment, social media, and nowadays you are using Wi-Fi to watch smart TVs as well. So it is everywhere. But even with all these changes, people want even better ways to solve tricky problems that businesses and regular people face. So इन changes के साथ लोगों को लगा कि वो जो business की tricky problems है, उनको जो वो रोज face करते हैं, वो internet के माध्यम से उसको और easily solve कर सकते हैं. But even with all these changes, people want even better ways to solve tricky problems that businesses and regular people face. तो आज सिर्फ हम इंटरनेट को एंटरटेनमेंट, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए ही यूज नहीं करते जो एक सिंगल इंडिविजुअल करता है, बट बिजनेस हाउसेस भी इसको बहुत वाइड रेंज में यूज करते हैं. इंटरनेट है, इंट्रानेट है, तो दे आर यूजिंग इट everywhere they can. This has led to a big increase in using data and analytics. तो बच्चों, अगर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है डेटा क्रिएशन में और उसके यूसेज में और एनालिसिस. डेटा क्रिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, यूसेज हो गया, एनालिसिस हो गया. मैं भी इस पर आपको एक एग्जांपल दूंगा.
which is making companies change how they do business and affecting many industries. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप। अब फॉर एग्जांपल आप एक रिटेल फर्म में काम कर, रिटेल का, और उस कंपनी के पास लगभग 4 लाख आर्टिकल्स है। 4 लाख आर्टिकल्स है। नंबर ऑफ स्टोर्स है उनके पास 200। अब 200 स्टोर पे लगभग, आप किसी स्टोर पे थोड़े कम आर्टिकल्स भी होंगे, किसी पे ज्यादा भी होंगे, तो 200 स्टोर्स पे अगर आप एवरेज 2 लाख आर्टिकल भी रखें, तो अब आप ये देखिए कि हर शाम, एवरी इवनिंग, दे रिक्वायर अ मदर रिपोर्ट। मदर रिपोर्ट का मतलब है सारे स्टोर्स की 2.5 3 लाख आर्टिकल्स की रिपोर्ट उसी शाम को आएगी। एनालिसिस होगा कि रिपोर्ट का एबिटा कितना निकला है, सॉरी नॉट रिपोर्ट के, स्टोर का एबिटा कितना निकला है, स्टोर ने कितना आज के दिन में इन्वेस्ट किया है, और आज के दिन में कितना स्टोर को रिटर्न आया है। तो 200 स्टोर्स का कलेक्टिवली शाम को एनालिसिस किया जाता है कि भैया 200 स्टोर्स में हमने इतने एसक्यूज डाले हुए हैं या इतने आर्टिकल्स डाले हुए हैं, तो हमने कितना इन्वेस्ट किया और हमें रिटर्न कितना आया। तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ इंट्रानेट, जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट यूज करते हैं, report making, Excel, computer, SAP, all those softwares application, they collaborate to generate this data। उसका एनालिसिस होता है और फिर शाम को पता चलता है कि जी हमने 1 करोड़ रुपया लगा के सिर्फ आज के दिन में 1 करोड़ 12 लाख रुपया कमाया है। तो आज की जो हमारी कमाई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 100 करोड़ हो सकता है, 12 करोड़ भी हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के न्यू फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर using too much of data and too much of analytics in order to bring in the right results. Let's move on to the second point: emerging market opportunities in smart technology। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है emerging market opportunities in smart technology। Smart technology is not just limited to for profit enterprises. It also presents significant opportunities in emerging markets। तो ये सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जाता है, पर इमर्जिंग मार्केट्स में भी इसका बहुत यूसेज है। फॉर इंस्टेंस, इन कीनिया, सेल फोन्स आर बीइंग, जो अपने मोबाइल फोन्स है, are being leveraged to collect and report data on disease specific issues, resulting in cost reductions and improved efficiency in the country's healthcare system। तो बच्चों, कीनिया के अंदर जितने भी लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, उन्हें हर महीने अपना हेल्थ चेकअप का डेटा अपने स्मार्टफोन की एक एप्लीकेशन में फीड करना पड़ता है, जिससे ये सारा डेटा सरकार एक्सेस करती है, उसे एनालिसिस करती है, एंड देन दे गेट टू नो हाउ मेनी पीपल आर हेल्दी, हाउ मेनी पीपल आर डिजीज, एंड हाउ मेनी पीपल आर क्योरेबल, हाउ मेनी आर इनक्योरेबल। तो इससे क्या है, यू नो in which direction the country is going। So it's very very important। ये सिर्फ प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के लिए यूज नहीं होता। There are significant other opportunities in the emerging market where smart technology is being used। Let's move on to the third point: information collection and analytics। In today's competitive landscape, understanding customers is crucial for businesses to attract and retain loyalty। बच्चों, आज मेरी बात आप याद रखिएगा कि आज जितना भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मेजर पर्पस क्या है?
that we can keep the customers, you know, linked to our company, synced with our ways of working, and they should appreciate whatsoever we are serving them with, products or services. और टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए भी हो रहा है, if somewhere they are generating feedback, so we know what sort of feedback they are generating and how to make ourselves better on the basis of their feedback. Data collection such as demographics, purchasing habits, and customer preferences enables companies to tailor their offerings and enhances customer satisfaction. तो मुझे डेमोग्राफिक्स का पता होना बहुत जरूरी है आज की डेट में, अगर आपने कंपनी चलानी है। परचेजिंग हैबिट्स का पता होना बहुत जरूरी है, और कस्टमर प्रेफरेंसेस का। इससे पता ये चलता है दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स आर। और अगर ये हमें नहीं पता होगा तो वी kept on serving them in something that they do not require, and ultimately our efforts will all go in vain. The businesses can now use data driven insights from analytics to compete effectively. और आज की डेट में जितना भी डेटा बिजनेस को अवेलेबल है उसका एनालिसिस करके दे आर कंपीटिंग इफेक्टिवली। और हमेशा जो कंपटीशन होता है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इज डूइंग बेटर, another company is learning from that company, it is trying to do better than what it was doing earlier. तो हमेशा जो कंपटीशन है ना एक हेल्दी एनवायरनमेंट को जन्म देता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जब बाद में नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन ऑलवेज generates a healthy environment. जिसने ग्रो होना है वो ग्रो हो जाएगा, और जिसने नहीं होना है then the company has to dilute. They can make use of huge amounts of information from sensors, social networks, digital platforms to make better decisions and improve their performance in the market. तो बच्चों जितना भी डेटा उनके पास आता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, वो उसको एक ही काम में लगाते हैं, और वो क्या है देखिए, मैं यहां पर एक हल्की सी लाइन खींच देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं। किस लिए यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और ये सब चीजें क्यों हम करते हैं? एक एंटरप्रेन्योर करता है सो दैट पहले से आज को वो इम्प्रूव कर सके। मतलब एक जो है ना केनी मेथड जो होता है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, मैंने परसों इसके बारे में पढ़ा है तो आपके साथ शेयर करना बनता है। CANANEI, हाँ, केनी मेथड। तो आज मैंने इस क्लास का पार्ट बनाना नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कैनी मेथड। तो ये कंपनी सारी इंफॉर्मेशन को कैनी मेथड के लिए यूज करती है। अच्छा, आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं, वेरी नोन मेथड। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग।
अब स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है रणनीति। ये प्लानिंग नहीं है, रणनीति। रणनीति। Business intelligence involves collecting, organizing, and analyzing data to uncover new opportunities and improve decision making. अब बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग किससे इस्तेमाल होती है? इट इन्वॉल्व्स इन कलेक्टिंग कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। इस सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, एनालाइज किया जाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उससे उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है टू अनकवर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अब बच्चों होता यह है कि हर इंफॉर्मेशन तो हमारे पास हो नहीं सकती, तो ज्यादा से ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ये जानने की कोशिश करनी है एक्चुअली वेयर वी आर स्टैंडिंग, एक्चुअली व्हाटएवर वी आर डूइंग इज राइट और नॉट, वी नीड टू वर्क ऑन डेटा, too much of data. By harnessing the power of data analytics, businesses can gain a competitive edge. अब businesses grow कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं? कंपटीशन को स्टडी करते हैं एंड देन दे ट्राई टू ब्रिंग देमसेल्व्स एट पार और ट्राई टू मेक देम बेटर देन द कंपटीशन। जैसे मैंने आपको कैनी मेथड बताया ना पे, ये इसका मतलब ही क्या है कि भैया आज से मैं कल को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। और इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन और डेटा चाहिए, उसका कलेक्शन चाहिए, उसे ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए और एनालाइज करना आना चाहिए। बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, businesses can gain a competitive edge. And this is a phrase, this is a line you can use anywhere you find it appropriate to gain competitive advantage or edge. Identify market trends, दौर क्या चल रहा है मार्केट, एंड डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, और रणनीति को अपनी ऑल्टर कर सकते हैं, बार बार आप लगातार ऑल्टर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। गोल चेंज नहीं करना है आपने, गोल आपका वही है, पर आपको अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना है। क्योंकि पहली बार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीम या दुनिया की कोई भी ब्रिलियंट आदमी पहली बार में स्ट्रेटजीज को प्रॉपर नहीं बना सकता। देयर आर सर्टेन इनहिबिशंस और चैलेंजेस होते हैं, या कुछ स्ट्रेटजी को कस्टमाइज करना पड़ सकता है, विच पीपल इनिशियल फेज में नहीं कर पाते हैं, बट व्हेन दे कीप ऑन यूजिंग इट वन आफ्टर अनदर, 1 साल 2 साल 3 साल, उन्हें पता चलता है कि कमियां कहाँ पे थी, एंड दैट्स हाउ दे। सो बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत इस्तेमाल में आती है फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, और वो किस बेसिस पे? डेटा के बेसिस। स्मार्ट मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, इट्स द फिफ्थ पॉइंट। द proliferation of smart devices and mobile technologies is reshaping how people interact and conduct business. तो बच्चों आज जिस प्रकार से स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल टेक्नोलॉजी अपना अपना रंग रूप बदल रहे हैं, लोगों को इंटरेक्ट करना आसान बना रहे हैं, इससे बिजनेसेस को बहुत फायदा। सेल्स ऑफ स्मार्टफोन्स हैव सरपास्ड दोज ऑफ ट्रेडिशनल पीसीज। पहले कभी पीसी एक सपना हुआ करता था, और आज आपके पाम टॉप पे, हाथ के ऊपर, यू आर हैविंग द होल वर्ल्ड इन योर हैंड। सो द सेल ऑफ स्मार्टफोन्स हैव सरपास्ड, आगे बढ़ चुकी है, दोज ऑफ ट्रेडिशनल पीसीज, highlighting the shift towards a more mobile centric world. People are doing the business on the move, generating the invoices on the move, sending the invoices on the move. Are we getting it? This trend creates new opportunities for industries to innovate and reach customers in varied ways, novel ways. तो इससे क्या है कि नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, वो नए से नए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए
and reach customers in different ways, because nowadays the trend is to become part of mobile centric world. ये phrase आप use कर सकते हैं wherever you want in the paper you find application. So smart mobility and connectivity is needed by everyone. आप देखिए, मैं कई बार ट्रेवल करता हूँ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और कई बार ऐसे एरियाज में भी जाना पड़ता है जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं है. तो विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स, विद द हेल्प ऑफ मेपल्स, मैं उन जगहों पे इजिली पहुंचता हूँ. I do my work, I deliver my sessions, I talk to people over there. And the best part is it tells you, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, वो आपको ये भी बता देती है कि आने जाने में how much fuel you have consumed. It's a great advantage for the people, those who are saving resources and working towards a better future for the people. 6th point cloud computing के ऊपर है. Cloud computing's impact on business models. Cloud computing has revolutionized IT infrastructure by providing scalable, आगे बढ़ता हुआ, and flexible solutions for storing and accessing data remotely. अब बच्चों, आपको पेन ड्राइव ले जाने की जरूरत नहीं है, हार्ड डिस्क ले जाने की जरूरत नहीं है. अब ड्रॉप बॉक्स है, कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड ऑन साइट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं. This technology allows organizations to reduce costs, increase flexibility. भाई एक ड्रॉप बॉक्स है, उसका कनेक्शन सबके पास है, नाम सबको मतलब पासवर्ड और यूजर आईडी मतलब यूजर्स को पता है ऑफ द कंपनी, एंड दे कैन एक्सेस द डेटा एनीवेयर दे. और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स अगर इंटरनेट कंपनी यूज कर रही है तो उस पर भी यूज किया जा सकता है. एंड ट्रांसफर ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स इनटू डायनामिक क्लाउड बेस्ड सर्विसेज. अब आपको कुछ अपने पास स्टोर करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज saved on a server in the cloud. So cloud computing is impacting business models in a big way. 7th point, the influence of social media on business communication. Platforms like Google, Facebook, and Twitter have transformed how companies communicate and engage with their stakeholders. You know that world's most desired search engine, Google, you know, social networking through Facebook, messaging, and again social networking through Twitter, have transformed how companies communicate and engage with people, those who are the partners. Social listening tools enable businesses to better understand customer needs and preferences, leading to more targeted marketing strategies and improved customer satisfaction. अब जो कुछ ऐसे सोशल लिसनिंग टूल्स हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कभी आप फेसबुक पे कुछ वीडियोस वॉच कर रहे हैं, कुछ रील्स देख रहे हैं, तो कई बार आपको बीच में मैसेज आता है, डू यू प्रेफर टू सी सच कंटेंट मोर और लेस. अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको उसी प्रकार का कंटेंट वो रेगुलरली दिखाते रहते हैं. तो सोशल लिसनिंग टूल्स एनेबल बिजनेसेस टू बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर नीड. तो ये टूल्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. Few days ago I was doing some window shopping on internet, और मैं सिर्फ कुछ शूज देख रहा था. तो अब बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे ही मैंने शूज उसमें देखने शुरू किए और मैं मोबाइल पे चेक कर रहा था, जैसे ही मैंने अपना सिस्टम ऑन किया तो सेम शूज विच आई शॉर्ट लिस्टेड जो मैंने चूज किए थे वो मेरे मोबाइल में भी आ रहे हैं. तो उन्हें अब वो चाहते हैं कि भाई ये कस्टमर की प्रेफरेंस है तो कस्टमर के माइंड से हटे ना. आउट ऑफ साइट इज आउट आउट ऑफ माइंड. तो साइट से हटता तो माइंड से भी हट जाता है. तो दे कीप शोइंग इट टू यू टिल द टाइम यू मेक अ परचेज. Future trends and business evolution. As new generations enter the workforce, armed with digital fluency and instant access to information. आज तो बच्चों there is a huge amount of access to information and people are becoming digitally literate and fluent. तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स और ऐड कर लेते हैं, digitally
digitally fluent and learned. And instant access to information, we can expect further innovations in business models and practices. और इससे होगा क्या कि आगे भी आने वाले वक्त में हम और बेहतर तरीके इजाद कर पाएंगे, जिससे बिजनेस मॉडल्स में ग्रोथ मिलेगी एंड प्रैक्टिसेस बेटर बनेगी. These ongoing changes will continue to shape the future of businesses. और सॉरी, नॉट बिजनेसेस, बिजनेस. जो ये ऑनगोइंग चेंजेस है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, ये आने वाले फ्यूचर में भी बिजनेस को बहुत तरीके से हेल्प करने वाली है. मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज सुन रहा था कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, बहुत ज्यादा. मतलब अगर आप देखें 9 o'clock से 11 o'clock तक इट इज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. और जैम लग जाए तो फिर वो एड ऑन प्रॉब्लम है. और शाम को फ्रॉम 6 p.m. to 8 p.m., 8:30 p.m. It's completely jam packed. Roads are filled with cars. Cars तो बहुत ज्यादा हो गई. पहले कार्स कम थी तो रोड्स खाली रहते, तो कार्स बहुत ज्यादा हो. तो अभी क्या आ रहा है कि फ्लाइंग टैक्सीज आ रही है मार्केट में, और वो दिल्ली टू गुड़गांव 8 to 10 मिनट्स में पहुंचेंगी एंड कैरिंग फ्यू पीपल. और दो कंपनीज हैं, एक इंडियन कंपनी और एक अमेरिकन कंपनी ने टाई अप किया है. अब देखिए वो टैक्सीज कैसे आती हैं, हाउ दे गोइंग टू फ्लाई. और क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि नाउ वी विल ऑब्जर्व फ्लाइंग टैक्सीज इन दिल्ली. देखिए अब क्या होता है. पर कहने का मतलब है कि थिंग्स आर एवोल्यूटिंग, थिंग्स आर taking a different shape. And all this technology, internet, business evolution, future trends, they are there to provide ease to the users. और वही entrepreneurs की हमेशा से कोशिश रही. तो बच्चों, with this we have come to the end of today's class, where we have taken 8 points: role of technology and social media in creating new forms of business, emerging market opportunities in smart technology, information collection and analytics, business intelligence for strategic decision making, smart mobility and connectivity, cloud computing's impact on business models, the influence of social media on business communication, and future trends and business evolution. This class is important. This class is important to understand Unit 4. There could be certain questions in the paper from this class. And at Mavericks India Solution, we are leaving no stone unturned to prepare detailed classes for you. बच्चों आप ये देख रहे हैं कि हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, पर हमें पता है कि विद इन फ्यू मंथ्स वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ आवर कोर्स. बट वी आर प्रोवाइडिंग क्वांटिटी with quality. We are not focusing only on quantity. We are focusing on quality. और जितने बच्चे रेगुलरली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ही एक ऐसे रेयर सब्जेक्ट से किया है कि जिसकी क्लासेस आपको बहुत कम मिलेंगी नेट के ऊपर. और जितना भी हम कंटेंट डेवलप करते हैं, हम फॉर एग्जांपल हमने आज एक टॉपिक आपको पढ़ाना है, उस टॉपिक को हम प्रॉपरली तैयार करते हैं. इट टेक्स अराउंड 1.5 day. और उसके ऊपर बच्चों जो हमारा यूएसपी है, हमारा यूवीपी है कि रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन. हम आपको सिनॉप्सिस देते हैं, हर सेशन में से 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स देते हैं, उनके मीनिंग्स बताते हैं इंग्लिश में और हिंदी. आज भी बताए हैं आपको. शो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम वन क्लास, उनके आंसर्स देते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेते हैं 10 with 4 options each with answers, true and false statements with answers, and fill in the blanks with answers. हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं, we will leave no stone unturned to make your journey towards success and growth simple. ये हमारा आपसे वादा है. और जब तक मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन है, विल कीप सर्विंग स्टूडेंट्स कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. हम फ्री लेक्चर्स देंगे,
पर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ना चाहते हैं 11th 12th ग्रेड में, and we could have made classes in English only, but we are doing it bilingually, so that whosoever being a student is listening and attending our sessions, they should understand each and every part of the class. So बच्चों, thank you very much for being here. मेरा एक और चैनल है मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन के नाम से, which is a motivational channel based on management concepts, communication skills, stress management, change management, people's management. We are touching so many concepts on that channel. Be the part of the channel as. So until meet next time, bye bye for now. God bless you all. अपना बहुत सारा ध्यान रखिए. तो मिलते हैं फिर next class में. Take care.